बाद रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां एक नाबालिग छात्र ने मामूली बात पर 10वीं कक्षा के एक छात्र को चाकू मार दिया। साथ ही बात होगी अरवल्ली की, जहां जय शामलिया सखी मंडल महिला सशक्तिकरण आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण बना है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अहमदाबाद से है, जहां मणिनगर स्थित 7 डे स्कूल के 9वीं कक्षा के एक छात्र ने 10वीं कक्षा के एक अन्य छात्र को चाकू मार दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे अभिभावकों में रोष फैल गया और स्कूल पहुंचकर अभिभावकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अन्य हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए स्कूल में तोड़फोड़ की। अभिभावक भड़क गए और प्रधानाचार्य व स्टाफ के साथ मारपीट की। पूरा मामला तूल पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वहीं मीडिया कर्मियों के साथ भी हाथापाई देखी गई। विधायक अमूल भट्ट भी मौके पर पहुंचे और लोगों से शांत रहने की अपील की, लेकिन गुस्साए अभिभावकों ने तुरंत न्याय की मांग करते हुए गुजरात पुलिस हाय हाय के नारे लगाए। पुलिस ने अब आरोपियों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। આ ઘટના ખૂબ જ દુઃખદ છે અને આ દુઃખદ ઘટના જે છે બની છે એને ધ્યાને લઈ અમે અત્યારે આ સ્કૂલની મુલાકાતે આવ્યા છીએ અને તાત્કાલિક અહીંયા શું તપાસ રિપોર્ટ માટે તો પોલીસ જે છે કાર્યવાહી કરી રહી છે, છતાં પ્રાથમિક અહેવાલ કયા પ્રકારનો મળે છે અને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ શાળા કંઈક દોષિત જણાતું હોય તો એ પ્રકારનું અમે પ્રાથમિક આ બાબતો મારા કાને પણ પહોંચી છે, પણ હકીકતલક્ષી અહેવાલ વગર સીસીટીવી ફૂટેજ દ્વારા અને પોલીસ રિપોર્ટ દ્વારા આ હકીકત થાય ત્યારબાદ જ આપણે એ વિશે આગળ કહી શકીએ। અને જો તમે કહ્યું એ પ્રમાણે જો બાળકના માતા પિતા જો એને લઈ ગયા હોય ત્યાં સુધી સ્કૂલે લાપરવાહી દાખવવી હોય તો એની સામે કાર્યવાહી થઈ શકે। ઓકે સર। 7 ડે સ્કૂલ ખોખરા વિસ્તારની અંદર ધોરણ 9ની અંદર ભણતો એક વિદ્યાર્થી અને ધોરણ 10ની અંદર એક ભણતો વિદ્યાર્થી જે છે એમને સ્કૂલની અંદર ઝઘડો થયો। એટલે સ્કૂલની અંદર ઝઘડો થયો એની અંદર જે 9મા ધોરણનો જે વિદ્યાર્થી છે ને 10મા ધોરણના વિદ્યાર્થીના પેટની અંદર કાચનો ટુકડો માર્યો, જેથી એને મરણ ગયેલો છે અને એના વિરુદ્ધમાં આપણે પહેલાં 307 દાખલ કરેલી, પછી મરી ગયા પછી આપણે એની વિરુદ્ધમાં 302 દાખલ કરી છે। અને એ છોકરો જુવેનાઇલ છે, નાની ઉંમરનો છે, 9મા ધોરણમાં ભણતો છે, એને પણ આપણે અત્યારે આપણા પોલીસ સ્ટેશનની કસ્ટડીમાં લઈ લીધો છે। અત્યારે જે ટોળું છે એમની રજૂઆત એવી છે કે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ અને પ્રિન્સિપાલ વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી। શું લોકોની રજૂઆત પોલીસ તરફથી કાર્યવાહી? ગઈકાલે સ્કૂલમાં જે ઇન્સિડન્ટ મળ્યો, જેમાં 10મા ધોરણમાં ભણતા બે બાળકોના આપસમાં ઝઘડામાં એક બાળક દ્વારા બીજા બાળકને છરી મારવામાં આવી હતી। આમાં ગઈકાલે ખોખરા પોલીસ દ્વારા આમાં અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડરનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। અને આમાં જે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળક આરોપી તરીકે હતા આને પોલીસ દ્વારા ડિટેન કરવામાં આવેલ और પોલીસ દ્વારા ઇન્વેસ્ટિગેશન આગળ વધારવામાં આવેલ। રાતે લેટ અવર્સમાં જે બાળક આમાં છરી લાગવાથી ઘાયલ થયેલા હતા, આની ડેથ થઈ ગઈ હતી। આના કારણે સિંધી સમાજના લોકો અને પરિવારના સદસ્યો और आजूबाजूना स्कूलમાં જે સ્ટુડન્ટ ભણતા હોય આના વાલીઓ દ્વારા 7 સ્કૂલ જે સ્કૂલ છે આ સ્કૂલ ઉપર ભીડ કરવામાં આવેલી। એમાં સફિશિયન્ટ સંખ્યામાં પોલીસ પ્રેઝન્ટ છે। પોલીસ દ્વારા ઇન્શ્યોર કરવામાં આવે છે કે કોઈ કાનૂન વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન પેદા નહીં થાય। અમે તમામ મીડિયા મારફતે તમામ લોકોને પણ રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે આપણે બધાને કાનૂન વ્યવસ્થામાં સહયોગ કરવો જોઈએ। પોલીસ વિભાગ પોતાનું કામ કરે છે। ઓલરેડી એફઆઈઆર દાખલ થયેલ છે। પ્રાઇમ એક્યુઝ પોલીસ દ્વારા ડિટેન કરવામાં આવેલ છે और જે વિધિક પ્રક્રિયા છે લીગલ એક્શન પોલીસને લેવાની છે લેવામાં આવશે। આટલા વાલીઓ છે, વાલીઓની એક રજૂઆત થાય છે કે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ છે, મેનેજમેન્ટ દ્વારા બહુ નાના મોટા બહુ સારા મુદ્દાઓ છે, ખાસ કર કે કેવી રીતની ડ્રેસ પહેરવી જોઈએ या કેવી વસ્તુઓ પહેરવી જોઈએ। अहमदाबाद में 7 डे स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे नए नाम के छात्र की 9th में पढ़ने वाले छात्र ने हत्या कर दी, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सभ्य समाज के लिए रेड सिग्नल है। बच्चों एक क्राइम तक पहुंच गए। परिवार को मैं हृदयपूर्वक की सांत्वना देता हूं और आज सभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी और सभी पुलिस डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के हमारे जिला शिक्षण अधिकारी सब स्कूल पहुंच चुके हैं। उसकी तपास हो रही है। मैं परिवार को फिर से सांत्वना देता हूं और इस केस को हम शिक्षा विभाग स्टडी करेंगे कि ये बच्चे लोगों में इतना क्राइम बढ़ रहा है, ये सभ्य समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। आज ये घटना निंदनीय है। पूरा शहर, गुजरात और भारत में सभी जगह पर ये समाचार सुनकर एक करुणा और दुख पहुंचता है।
तो ये जिन्होंने एक हत्या की उसको तो सज़ा मिलेगी और पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। सभी लोगों को मैं शांति रखने की अपील करता हूँ और दोषितों को सख्त में सख्त सज़ा करने के लिए पुलिस वहाँ पूरा डिटेल के साथ वैज्ञानिक उपकरणों को उपयोग करके ये केस को डिटेन कर लिया है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात के अरवली जिले के शामलाजी में स्थित जय शामलिया सखी मंडल महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण बन रहा है। गुजरात सरकार की सखी मंडल योजना के तहत स्थापित यह मंडल ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनके जीवन में नया उत्साह और आत्मविश्वास ला रहा है। जय शामलिया सखी मंडल से जुड़ी दाहीबेन कटारा ने कहा, इस मंडल ने हमारी जिंदगी बदल दी है। पहले हम घर के कामों तक ही सीमित थी, लेकिन अब हल्दी, अदरक, महुदा के लड्डू, पापड़ जैसे उत्पाद बनाकर हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई हैं। जय शामलिया फेडरेशन में हूँ कटारा डाईबेन सुरेशभाई गाम वाघपुर तालुको बिलोड़ा जिल्लो अरवली में बोलूँ छूँ। अमारी अहींया जय शामलिया फेडरेशन महिलाओं अनेकविध प्रवृत्ति करे छे, जेवी के हळदर में पाउडर बनाववानो, आदू में सूट बनाववाने, आदू में आदू पाक बनावे छे, तेमज मवड़ा में लाडवा बनावे छे, तेमज रागीना पापड़ बनावे छे, पछी बटाकाना वेफर बनावे छे, तेमज प्राकृतिक खातर भी बनावे छे, जेवू के जीवामृत, घन जीवामृत, अनेकविध प्रवृत्तिओ करे छे, जे अमारा गुजरात सरकार श्री द्वारा अमारी बहनों ने तालीम तेमज प्रोत्साहन मळे छे, तेमज रोजगार ऊभी करवा माटे अमारा दरेक वीओमो 15 लाख रुपया सरकार ने फाळवेला छे। ते एक फेडरेशन द्वारा तेमज सहकारी मंडली पण बनावेली छे, एमो बधा ज पैसा एकत्रित करी बहनोने धिराण भी करी सकीए छे। सरकारना प्रयत्नथी तेमज DRDA। अरवली से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीश सोलंकी। नवसारी जिले और बिलीमोरा और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते बिलीमोरा शहर की सोसाइटियों और सड़कों पर जलभराव के कारण वाहनों और पैदल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। वहीं नवसारी जिले के दूरदराज के गाँव में चेक डैम और कॉजवे पर जलभराव के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। भारी बारिश के कारण व्यापारियों को सोमनाथ मंदिर में श्रावण मेले की दुकानें सुबह से ही बंद करनी पड़ी। बिलीमोरा नगर पालिका अध्यक्ष मनीष भाई पटेल ने सोसाइटी में जमा पानी को शीघ्र निकालने के निर्देश दिए हैं। बिलीमोरा से सी न्यूज़ संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट। वलसाड जिले में भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ गई। कपराड़ा तालुका में भी कुछ इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। कपराड़ा तालुका में 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण गढ़वी से धरमाल होते हुए बेटपा होते हुए दादरा नगर हवेली जाने वाला रास्ता ओवरफ्लो हो गया है। गढ़वी मुलगाम में कोम कॉजवे ओवरफ्लो होने से 7 से ज़्यादा गांव के लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गढ़वी गांव में अक्सर एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों का एक गांव से दूसरे गांव जाना मुश्किल हो गया है। वहीं भारी बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। ग्रामीणों की मांग है कि पुल या कॉजवे को ऊंचा किया जाए। गढ़वी ग्रुप पंचायत के सरपंच बाबू भाई हारपड़े द्वारा अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता तार मोहम्मद मेमन और अश्विन भाई की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।